Yes friends, so welcome you to this amendment lectures for the first time being conducted in an video lectures in order to facilitate and make it easy for the students to access the video lectures for the very first time. And not only that, but yes, you can refer this lectures as and when you require at your own pace. As Naukar Institute always believes in providing the way the students friendly, the students need it. Friends, as far as this video lectures are concerned, I am here to discuss with you the amendments which are applicable as far as the corporate law is concerned, which is carrying 30 marks in whole of the 100 marks paper of law, ethics and communication, and that too, this amendments will be restricted to May 2017 CA IPCC. So those who are pursuing with the CS executive and going to appear in June 2017, this videos will not be useful to them thoroughly. Two reasons, because for them, apart from this, as far as executive is concerned, apart from this, there are various amendments. The course curriculum is different, though it is Companies Act. And second thing, the level of discussion as far as the CS is concerned is much more in depth, not just overview as it is in the corporate law of IPCC. Friends, before we move with the amendments, let me just clarify to you that on which aspects we are going to discuss the amendment portion. The very first, we are going to discuss the concepts of incorporation which are amended, and there are two major changes. One is there is a new process of SPICE incorporation, and second is the concept of CRC, Central Registration Center. Then few minor amendments as far as the chapter of deposits, share certificates and general meetings is concerned. We will also discuss the exemption notifications which is issued by MCA with respect to the government companies, Section 8 companies and private companies, those points which are affecting the IPCC syllabus. And yes, least but not the last, the planning portion, how you plan out your subject of company law, and also how you can present your answer in a better manner, or whenever the practical questions are asked, how you are going to present the particular thing. Now friends, as far as the incorporation is concerned, the portion of incorporation, we need to discuss two things in incorporation. One is the SPICE process of incorporation, and the another is the concept of CRC, Central Registration Center. These three things we need to discuss. Yes. So now friends, we are going to discuss the very first part, that is, you can say a new process available for incorporation of a company, that is SPICE, simplified pro forma for incorporating companies electronically. Friends, I think so that if you want to understand this SPICE, then let me first clarify that हम जो अब तक जो ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़े थे, ऐसा नहीं है कि स्पाइस के आने से वो ट्रेडिशनल अप्रोच चला गया है, पर हाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि अब अगर आपको कंपनी बनानी हो तो आपके पास दो अप्रोच अवेलेबल है, या तो आज तक का पुराना अप्रोच, या फिर आप यूज कर सकते हो स्पाइस अप्रोच जो हम देखने जा रहे हैं. So friends, let me clarify that it is not so that if you learn SPICE, you are required to unlearn the old process of incorporation of firm INC 7. No friends, that process is still there. So in order to have a better conceptual clarity, let me first give you a very brief of that old traditional approach of form INC 7 which we were learning, where we were doing some preliminary steps. हम कुछ preliminary steps लेते थे, जैसे to decide the subscribers to company, to decide that what will be the object of the company,
to decide that where the register office of company should be located, to decide that what will be the authorized capital of the company, to decide that what will be the liability of members, that is limited by shares, limited by guarantee with share capital, limited by guarantee without share capital. ये सब कुछ जो हम डिस्कस करते थे वैसा यहां डिसाइड करना होगा. फिर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते थे या क्या करना अभी भी चाहिए, तो ना सबसे पहली चीज अवेलेबिलिटी ऑफ नेम. तो वो हम कैसे करते थे, तो वी वर फाइलिंग लॉन्च फॉर्म INC1 टू ROC. एंड आप क्या करते थे, नाम अवेलेबल करवाते थे. इसके बाद हम क्या करते थे, हम अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन करते थे. सबसे पहले तो हम बनाते थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. कैसे, इन परस्यूएंस, इन अकॉर्डेंस ऑफ शेड्यूल 1 टू द एक्ट. उसके साथ साथ आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाते थे. डिक्लेरेशन, अगर मैं नाम लिखूं सारे, तो एक था फॉर्म INC8, INC9, INC10, INC22, DIR2 एंड DIR12. ये सारे अलग अलग फॉर्म्स थे. जैसे कि अगर हम याद करें तो फॉर्म INC8 was a declaration. Form INC9 was affidavit. Form INC10 was verification of signature of subscribers to company, जिसे हम signatories to memorandum भी कहते थे. Form INC22 was that अगर आपकी कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पहले से ही हो तो फिर आप उसका वेरिफिकेशन करवाते थे. फॉर्म DIR2 जिसमें हम कंपनी के पहले पहले डायरेक्टर्स की सहमति लेते थे कि हाँ वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं. एंड फॉर्म DIR12 जिसमें हम उनकी डिटेल्स ROC के पास फाइल करते थे. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने होते थे. फिर द रोल वॉज कमिंग ऑफ ROC. ROC का क्या रोल आता था, द डॉक्यूमेंट्स were lodged to along with fees. फीस कौन सी फीस, प्रिस्क्राइब्ड इन companies registration offices
रूल्स 2014। फिर आरओसी क्या करता था? देन आरओसी डज वैलिडेशन। फिर क्या होता था? Certificate of incorporation. The certificate of incorporation granted by ROC in form INC 11. एंड एक चीज फॉर्म आईएनसी 11 में ग्रांट किया जाता था, पर हम जो फॉर्म भरते थे, यानी कि आप कह सकते हो कि ट्रेडिशनल अप्रोच का जो मेन फॉर्म था वो था फॉर्म आईएनसी 7। वो कौन सा फॉर्म था? फॉर्म आईएनसी 7। उसके साथ हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करते थे एंड हमें आईएनसी 11 मिलता था। दिस इज द प्रोसेस which is still there and available, and now we are going to understand the another process, that is SPICE approach. The process SPICE stands for simplified proforma of incorporating companies. Yes friends, so in order to incorporate a company by SPICE approach, which as we see stands for simplified proforma for incorporating companies electronically, the main form here will be, as there the main form was form INC 7, another form will be form INC 32. SPICE. This will be the main form which we are going to use for incorporating the companies under SPICE. What's the difference friends? Here we are not required to file a separate, yes we need to follow the preliminary steps as usual, the formation steps. हमें कोई अलग से INC 1 भरने की जरूरत नहीं है, ना हमें कोई अलग से डायरेक्टर के डीन के लिए अप्लाई करने की जरूरत है DIR 3, but you can say all these forms taken together and we need to just file one integrated form, that is integrated form INC 32 प्लस हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है उसके लिए फॉर्म INC 33, अगेन जो स्पाइस है उसकी वजह हम स्पाइस लिखते हैं, एंड AO के लिए फॉर्म INC
34. So memorandum के लिए we need to file form INC 33 एंड इसके लिए फॉर्म INC 34. सो कुल मिला के अगर आप ये 3 फॉर्म फाइल करते हो, यानी मेन फॉर्म एंड अलॉन्ग विद दैट इंस्टेड ऑफ सो मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, जस्ट 2 documents MOA, तो ROC will go for validation of the same and it will grant you certificate of incorporation in form INC 11. So this is how nowadays 2 approaches are available, and if we try to generalize, then remember one thing, that whenever you are following a SPICE approach, before giving certificate of incorporation, there is one concept of that is available, that is of resubmission. When this concept of resubmission is available, if application is defective और इनकम्प्लीट, यानी अगर आपने जो फॉर्म भरा है वो डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट हो, तो ROC will give you a opportunity to resubmit the corrected form or to resubmit the incomplete information. Time limit to submit complete or corrected form is of 15 days. यानी जिस दिन आपको इनकम्प्लीटनेस या डिफेक्ट बताया जाए उसके 15 दिन में आपको उसे सबमिट करना होगा. अगर फर्स्ट टाइम में आपने सबमिट किया एंड अभी भी गलती है, देन 2 opportunities to resubmit is given. पहले 3 अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, पर अब सिर्फ 2 ही अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. एंड आपको ध्यान ये रखना है, प्रोवाइडेड टाइम फॉर रीसबमिशन shall not exceed 30 days. यानी रीसबमिशन के लिए जो टाइम जाता है वो 30 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. सो खास करके इन दिस स्पाइस अप्रोच वी आर ऑल्सो अवेलेबल विद द प्रोसेस ऑफ रीसबमिशन. प्लस फ्रेंड्स, नाउ वी कैन से दैट नाउ व्हेन यू नो बोथ ऑफ दिस प्रोसेस, one is the traditional approach, another is the spice approach. Then friends, from date which I am specifying right now, from 29th December 2016, form INC 2 is deprecated. What is that form INC 2 is deprecated? So now no more form INC 2 is available, and earlier INC 2 was available for incorporating a OPC. So now you can say that अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो विथ 7 मेंबर्स, अगर आप प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, अगर आप ओपीसी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, अगर आप निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, तो ये सारों के लिए वी हैव फॉर्म INC
32 स्पाइस। तो बता सर, तो फिर हमने ट्रेडिशनल अप्रोच क्यों पढ़ा? तो फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, अगर आपको पब्लिक कंपनी विथ ग्रेटर देन 7 सब्सक्राइबर्स बनानी हो, ये एक अनरजिस्टर्ड कंपनी का कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए आज भी फॉर्म INC 7 यूज करना होगा। So this is, you can see, a complete analysis of the new SPICE approach which has came, and because of that various amendments as they are in the concept of, you can say, the incorporation process. Friends, one another change in incorporation is the new concept of CRC registrar. What is CRC registrar? Then it's Central Registration Center. The establishment of CRC is done not for all the jurisdiction processing, but it helps at the time of incorporation of a company, and the power, the jurisdiction, basically jurisdiction का मतलब literal language में power सत्ता होता है, the power of processing and disposal of e-forms, then may the e-form be INC 7 and related forms, या if SPICE then INC 32, या फिर URC 1 CA final, it is not related to you. So ये फॉर्म्स जब फाइल किए जाते हैं तो उनका सिर्फ प्रोसेसिंग, उसका डिस्पोजल, उसके रीसबमिशन, रिलेटेड मैटर्स ही सिर्फ रजिस्ट्रार CRC हैंडल करता है। बाकी एक बार इनकॉर्पोरेशन हो जाए उसके बाद जो ROC के पावर्स होते हैं वो तो नॉर्मल जो जुरिस्डिक्शनल ROC होता है, ही ओनली कंटिन्यूज टू एक्सरसाइज। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द न्यू अमेंडमेंट एज फार एज द सेंट्रल CRC is concerned. It has a jurisdiction all over India, having territorial jurisdiction all over India. Whereas the jurisdictional ROC does not have a territorial jurisdiction all over India, but it has territorial jurisdiction over the states. So इसका पूरे इंडिया में jurisdiction है, इसका सिर्फ कुछ state wise limited jurisdiction होगा। So this is one another. So आप ऐसा कह सकते हो कि जब भी आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो सेक्शन 7-8 में, या फिर आप अनरजिस्टर्ड कंपनीज को रजिस्टर्ड कंपनी में कन्वर्ट करते हो, CA फाइनल में आएगा, तो जो आप फॉर्म फाइल करते हो उनका प्रोसेसिंग, उनका डिस्पोजल एंड उसके रिलेटेड मैटर्स CRC ROC हैंडल करेगा, एंड उसके बाद के सारे मैटर्स कौन हैंडल करेगा? देन आर नॉर्मल ROC जो है वो हैंडल करेगा। सो फ्रेंड्स, दिस आर द 2 अमेंडमेंट्स व्हिच आर बीइंग ब्रॉट इन द पर्टिकुलर chapter of incorporation of companies. Friends, in this amendment, exemption notifications we are keeping the last. Now we are discussing some very small amendment as far as the deposits is concerned. The amendment is regarding acceptance of deposits from public. Then if a company wants to accept the deposit from public, the very first point is the company shall be eligible company. What we mean to say by eligible company? Then you can say जो कंपनी है वो पहली बात तो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, बिकॉज प्राइवेट कंपनी कैन नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम पब्लिक, एंड दूसरा उसका नेटवर्थ या जो टर्नओवर है
वो मिनिमम 100 करोड़ या फिर 500 करोड़ होना चाहिए। ऐसी कंपनी पब्लिक के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ये कंपनी जब पब्लिक के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उसे सबसे पहले तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 की सारी कंडीशंस का पालन करना होगा। अरे सर ये क्या था? तो दिस इज, यू कैन से, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। तो वो जो नियमों का पालन करना था वो तो करना ही होगा, उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलग रूल्स है उसका भी पालन करना होगा। एंड अब एक छोटा सा चेंज, क्या अब उन्हें क्रेडिट रेटिंग भी करवाना होगा। क्रेडिट रेटिंग किसके पास से करवाते हैं? सेबी, रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास से, लाइक केयर, क्रिसिल, आइक्रा एक्सेट्रा। ये जो क्रेडिट रेटिंग करवाते हैं, इट इज इंक्लूडिंग दी विच चेक्स द नेटवर्थ, द लिक्विडिटी इन द कंपनी एंड ऑल्सो इट चेक्स द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पे डिपॉजिट्स। It should be done at the time of accepting the deposits and at least once in a year, and not only that, it should also be communicated to public at large and ROC in form DPT3. Friends, what is DPT3? Then it is the return of deposits. So, in this whole process, the change is this. The concept of credit rating. Else the whole thing remains one and the same. And some another very minute amendments as far as the chapter of share certificate and debentures is concerned is regarding the buyback, share certificate and debentures. If we focus on the portion of buyback, then when the buyback offer is made and it is accepted by all the members, then the offer for buyback, so remember, all the members shall agree, then the offer for buyback shall remain open for minimum 15 days. This is the concept introduced. Plus, as far as the share certificate is concerned, the earlier provisions were something like this. Okay, share certificate, it is a certificate issued under the common seal of the company, specifying the shares held by the person, and it was a prima facie evidence, it was a proof that the person who is holding is the owner of the company. So by analyzing this, we can think that this is mandatory. But now they have written common seal, if any. So that's how now it is no more mandatory, now it is optional. So अब कॉमन सी लगाना मैंडेटरी नहीं है। प्लस डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की बात करें तो पहले ऐसा था कि लिस्टेड कंपनी के अंदर 15 दिन के अंदर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। अब अमेंडमेंट है, अब ये 15 दिन का जो टाइम पीरियड है उसे उन्होंने बढ़ा के 45 डेज कर दिया है। एंड लास्टली उन्होंने डिबेंचर्स के बारे में बोला कि अगर गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने या आरबीआई ने या नेशनल हाउसिंग बोर्ड या कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जैसे कि सेबी, इरडा, उन्होंने अगर परमिशन दी तो 10 साल से ज्यादा के पीरियड के डिबेंचर्स भी एक कंपनी इश्यू कर सकती है। So these are the very small amendments, very minute amendments, not so important that you shall note down as far as the chapter of share certificate and the debentures is concerned. Friends, kindly take the note of same. Friends, as far as the general meeting is concerned, a very minutest amendment has came, that is regarding notice requiring special notice.
तो उसके अंदर था कि भाई जब भी कंपनी के मेंबर्स या मेंबर चाहते हैं कि कंपनी स्पेशल नोटिस भेजे, तो जो रिक्वेस्ट थी वो साइंड होनी चाहिए या तो उन मेंबर्स के द्वारा जिनके पास मिनिमम 1% ऑफ टोटल शेयर वोटिंग पावर हो, या फिर उनके पास उतने शेयर्स हो जो 5 लाख से एक्सीडिंग ना हो। ऐसा पहले था, बट अब अमेंडमेंट है, इट इज नाउ ग्रेटर देन और इक्वल टू, काइंडली नोट। सो इट इज उनके पास उतने शेयर्स होने चाहिए जिसकी मिनिमम 5 लाख रुपए पेड अप। सो या तो उनके पास 1% मिनिमम वोटिंग पावर हो, या तो फिर उनके पास मिनिमम 5 लाख के शेयर्स हो। तो वैसे मेंबर इंडिविजुअल या कलेक्टिवली अगर कंपनी को रिक्वेस्ट करे तो कंपनी स्पेशल नोटिस भेजेगी। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट, खाली इतना फर्क, पहले नॉट एक्सीडिंग था, अब नॉट लेस देन हो गया। सो काइंडली इस पर्टिकुलर पोर्शन को आप फर्स्ट नोट डाउन करें। Secondly, if we see, then the last portion as far as the amendment is concerned is regarding the exemption notifications which are given. जिसमें मैं आपके साथ 3 अलग अलग कंपनी के एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन डिस्कस करना चाहूंगा। द वन रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनी, द अनदर रिलेटेड टू प्राइवेट कंपनी एंड द थर्ड रिलेटेड टू सेक्शन 8 कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो नॉर्मली ऐसा रूल होता है कि जब भी आप कोई भी कंपनी की कोई भी प्रकार की सिक्योरिटी को ट्रांसफर करना चाहते हो, तो फिर अगर आपके पास वो सिक्योरिटी हो तो वो सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट, एंड अगर आपके पास वो सिक्योरिटी ना हो तो सिक्योरिटी के अलॉटमेंट का लेटर आपको देना होता है कंपनी को, एंड उसके साथ साथ आपको ट्रांसफर डीड देनी होती है फॉर्म SH4 में। For as far as the government company is concerned, no such deed is required when there is a transfer of bond. खाली करना क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ अलॉटमेंट के साथ सिर्फ ट्रांसफर को अपनी डिटेल्स इंटीमेट करनी होती है, जैसे कि नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन इफ एनी। मोरओवर गवर्नमेंट कंपनी होती है, वो अपनी AGM जब बुलाना चाहती है तो वो ऐसी कोई भी जगह पे बुला सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड हो। उन्हें रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुलानी होगी, ऐसी कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो ये 2 खास अमेंडमेंट्स एज फार एज गवर्नमेंट कंपनी इज कंसर्न। इफ यू फोकस ऑन द अमेंडमेंट विच इज रिलेटेड टू प्राइवेट कंपनी, तो उसके अंदर ऐसा है कि नॉर्मली कोई भी कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी, वो जब अपने मेंबर्स के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हो तो उन्हें सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 को फॉलो करना होता है। पर जब एक प्राइवेट कंपनी हो जो अपने मेंबर्स के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, जो नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स हो, अब थोड़ा सा चेंज यहां पे एक्स्ट्रा एक ऐड हुआ, दैट इज प्लस तो अगर एक प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम तक अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करने जा रही है, तो जो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के जो नियम है, दैट शेल नॉट अप्लाई, दिस इज द एग्जेम्पशन गिवन। एंड नॉर्मली ऐसा रूल है सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में कि जब एक कंपनी सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को फर्दर शेयर्स देना चाहती है तो नॉर्मली कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। बट एज फार एज प्राइवेट कंपनी इज कंसर्न, प्राइवेट कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन की जगह ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए। प्लस अगर हम सेक्शन 8 कंपनी की बात करें, सेक्शन 8 कंपनी को बहुत सारे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, दैट इज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट्स और लाइसेंस्ड कंपनी, या फिर उसे कहा जाता है एनटीसी। तो उसके लिए खास करके कि उसके एजीएम की डेट, टाइम, प्लेस इज डिसाइडेड बाय बीओडी। अगर कोई डायरेक्शंस दिए हो मेंबर्स ने तो उसको फॉलो करते हैं, अदरवाइज इट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय बीओडी। एंड नॉर्मली
नोटिस 21 दिन पहले जाती है, 21 क्लियर दिन पहले, बट यहां नोटिस 14 क्लियर डेज पहले जानी चाहिए. तो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर आल्सो नोटिफिकेशंस अवेलेबल विथ रिस्पेक्ट टू निधि कंपनी, बट कंसिडरिंग द IPCC curriculum, I didn't thought it much more appropriate to discuss that, but these are the amendments which are related to that, जो आपके exemption notification में दिए गए, तो जिसको आपको खास करके मेरे मुताबिक ये सारे notifications में से IPCC related इतने, बाकी सारे final related है, तो खास करके आपको इतने provisions learn by heart कर लेने चाहिए. Yes, friends, so now moving towards the last part of this particular amendment sessions, where many students has a doubt that how to write the answers to practical questions. Then I say that always write first the legal framework. This is optional. You'll understand why I'm saying this optional, because once you see the contents, then you'll come to know. इसके अंदर आपको क्या क्या लिख के आना है. Then you can say कोई लैंडमार्क जजमेंट आपको याद हो, प्लस अगर इंपॉर्टेंट प्रोविजन में से हो तो सेक्शन नंबर आपको यहां पे कोट करना होगा. अगर याद हो तो, अगर ना याद हो तो इट विल वर्क आउट. सो फ्रेंड्स, यू माइट बी वॉन्डरिंग दैट विच सेक्शंस टू रिमेंबर. देन आई विल ऑलवेज से रिमेंबर ऑल द सेक्शंस विच आर रिगार्डिंग द A कैटेगरी क्वेश्चंस. प्लस कौन से केसेस याद रखे, तो एक तो सालोमन वर्सेस सालोमन जो नेचर ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के सारे केस लॉज याद रखो विथ फैक्ट्स. पिक वर्सेस गर्ने एंड रेक्स वर्सेस लॉर्ड कीसलैंड, ये प्रोस्पेक्टस रिलेटेड है. दिस इज रिगार्डिंग मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस. दिस इज रिगार्डिंग मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस हो तो ओरिजिनल अलॉटी केस कर सकता है, ट्रांसफर अलॉटी नहीं कर सकता. प्लस SL बागरी वर्सेस ब्रिटानिया लिमिटेड, दैट इज ट्रांसफर के अंदर ट्रांसफरी जब माइनर हो तो क्या करना चाहिए. एंड लास्ट इज LIC वर्सेस एस्कॉर्ट, इज रिगार्डिंग द रिक्विजिशन ऑफ EGM. सारे केसेस याद रखते हो वेल एंड फाइन, बट इतने तो आपको याद रहने ही चाहिए. प्लस सेक्शंस नंबर भी कौन से A कैटेगरी वाले याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं. सो फ्रेंड्स, काइंडली नोट डाउन दिस. इतने केसेस तो आपको कंपल्सरीली याद रखने ही चाहिए. प्लस सेकेंड पॉइंट आपको क्या लिखना चाहिए, दैट इज लीगल बैकग्राउंड. यहां पे आप क्या लिखोगे, यू राइट प्रोविजंस ऑफ फैक्ट. जैसे अगर आपको टाइम पीरियड ऑफ नोटिस के ऊपर पूछा हो तो नोटिस 21 दिन पहले सर्व होनी चाहिए, उसमें डेट ऑफ सेंडिंग द नोटिस इग्नोर करना चाहिए, डेट ऑफ मीटिंग इग्नोर करनी चाहिए, 48 घंटे तो उसे जाने में लगते हैं. ये सारे प्रोविजंस आपको लिखने चाहिए. अगर प्रॉक्सी सही टाइम पे डिपॉजिट हुई कि नहीं उसके बारे में पूछा हो तो प्रॉक्सी 48 घंटे. So friends, now we are discussing the third part, that is regarding the scenario of case. Means आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में आपको लिखना होगा. मीन्स क्वेश्चन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पॉइंट वाइज लिखो. भाई मीटिंग की बात हो तो कौन से दिन कंपनी कौन सी थी, मीटिंग कौन सी थी, नोटिस किस दिन भेजी गई, क्या एलिगेशंस हुए. इन शॉर्ट you need to write the facts of the case. ये दोनों जब आप एक बार लिख देते हो उसके बाद आपको एनालिसिस करना होगा. यानी यहां पे आप क्या करोगे, आप
कंपैरिजन करोगे। किस दो चीज का कंपैरिजन करोगे? तो यू विल ट्राई टू कंपेयर फैक्ट्स विद एक्ट। यहां पे आप सारे एनालिसिस दे सकते हो, डायग्राम्स यूज कर सकते हो, टेबल यूज कर सकते हो, एक्चुअली सपोर्ट करो कि आप कैसे आंसर कहना चाहते हो। एंड एट द एंड give the final conclusion. So this is the way you should always present your answers. Your answer presentation will always differ and you will get some good marks. This strategy you can follow anywhere where you are asked with the practical questions as far as the subject is theoretical. So friends, with this, moving towards the very last portion, you might be wondering that day before examination or whenever we are preparing, how we shall prepare the chapters, right? Then I'll say that I have categorized the chapters into 3 categories. The first 4 as A category, remaining as B category, and few rest as C category. क्या फर्क ये 3 कैटेगरीज में? ये चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने चाहिए। ये चैप्टर्स आपको सिर्फ A, B एंड C जो कैटेगरी होती है उसमें से ये चैप्टर्स के लिए आपको C कैटेगरी करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने A कैटेगरी बोले उसके अंदर A, B, C, तो आपको तीनों कैटेगरी करनी चाहिए कंप्लीट चैप्टर। प्लस हो पाए तो ऐसा जरूरत नहीं है, पर अगर हो पाए तो इसके लिए आपको ICAI की PM भी चेक कर लेनी चाहिए। पर ऐसा जब जो रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं उसके अंदर ये जरूरत नहीं है। सो दिस आई विल से इट इज ऑप्शनल। एंड जो C कैटेगरी मैंने बताया है उसके अंदर हमारे पास जो इन ऑल जो अंदर आंसर्स की 3 कैटेगरी होती है उसमें C कैटेगरी के लिए सिर्फ A कैटेगरी करो, आपको B एंड C करने की जरूरत नहीं है। प्लस यू कैन से आप बोलो कि सर डे बिफोर एग्जामिनेशन सीक्वेंस कौन सी होनी चाहिए? देन सीक्वेंस भी आपको यही फॉलो करनी होगी द वे इट इज स्पेसिफाइड हियर। एंड फ्रेंड्स, ऑलवेज 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 रिमेंबर, जब भी आप कोई भी मटेरियल यूज करते हो, मैं कोई प्रेजुडिस नहीं कर रहा कि आप ये मटेरियल यूज करो वो मटेरियल यूज करो, बट आप कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हो देन आप इस कैटेगरी को फॉलो करो। एंड एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, नोटबुक हमेशा पहले रीड करो, फिर आप कोई भी मटेरियल रीड करो। प्लस मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना चाहिए, बट एज फार एज द सब्जेक्ट, द होल सब्जेक्ट इज टू लेंथी, that is, it covers ethics, communication, so many business laws, and apart from that the company law. Then in order to have a balanced preparation, I'll advise you that the material provided to you from Naukar is more than enough. वो देखने के बाद अगर आप शायद से PM नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, पर नोटबुक एंड इस प्रकार से A कैटेगरी में तीनों प्रकार, A कैटेगरी चैप्टर्स में तीनों इसी सीक्वेंस में, B कैटेगरी के अंदर A एंड B C करने की जरूरत नहीं है ये सीक्वेंस में, C कैटेगरी चैप्टर में सिर्फ A कैटेगरी करो ये सीक्वेंस में, तो कभी कोई प्रॉब्लम लगभग आना चाहिए नहीं। दिस A, B and C आर द कैटेगराइजेशन ऑफ द चैप्टर्स, एंड द इंटरनल कैटेगरी की जो मैं बात कर रहा हूं वो हमने ऑलरेडी क्लासरूम लेक्चर सब चल रहे थे तब हमने किए हुए हैं। सो अगर आप इस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे, पॉजिटिव अप्रोच रखोगे, पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स होगे एंड गॉड के ब्लेसिंग्स होगे, तो आपको पास होने से फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई नहीं रोक सकता। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड काइंडली नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स व्हिच आर गिवन टू यू हियर विथ।